اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان ابھی تک نہیں بنایا گیا تھا۔ دنیا میں ایک ایسی قوم تھی جو آج کے انسانوں سے بالکل ڈیفرنٹ تھی۔ شروع میں انہوں نے امن سے زندگی گزاری، لیکن وقت کے ساتھ وہ صحیح راستے سے بھٹک گئے۔ انہوں نے سوچا کہ انہیں ہر طرح کے ظلم اور بھیانک بے دردی کرنے کا حق ہے۔ آخر میں اللہ نے فیصلہ کیا۔ اللہ نے فرشتوں کا ایک لشکر بھیجا۔ کچھ مومن جن بھی اس لشکر میں شامل ہوئے، ان میں سے ایک جو علم کا رہبر تھا اور مومنوں کے لیے ایک رہنما تھا، وہ فرشتوں کے درمیان بلند کیا گیا، حتیٰ کہ اس نے فرشتوں کو بھی علم سکھایا۔ اس نے انصاف کے لیے جنگ لڑی، فرشتوں کے لشکر کی رہنمائی کی اور آخر میں جیت کر دھرتی پر امن قائم کیا۔ اس نے ایک سلطنت بنائی، لیکن یہ کہانی آپ کو حیران کر دے گی، کیونکہ یہ کہانی شیطان کی زندگی کی ہے، جب وہ ابھی شیطان نہیں ہوا تھا۔ اس ویڈیو میں آپ اس کی وہ زندگی دیکھیں گے جو اس کے بغاوت سے پہلی تھی۔ ہم ایک نئی اور حیران کن ویڈیو کے ساتھ واپس آئے ہیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ویڈیو کو لائک کریں تاکہ آپ ایسی کہانیوں سے محروم نہ رہیں۔ تو اگر آپ تیار ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ دنیا میں جہاں بھی جاؤ، ہر تہذیب میں ایک خاص شیطان کی شخصیت ملتی ہے جو لوگوں کو دھوکہ دینے کا کام کرتی ہے۔ مثلا گریک تہذیب میں ہیڈیز، زورواسٹرنزم میں اہریمن، قدیم مصر میں سیت، قبالہ میں سمائل، یہودی اور مسیحی منبعوں میں عزازیل اور سیریک روایتوں میں عزازیل۔ چاہے نام کچھ بھی ہو، ہر مذہب میں ایک جیسی شخصیت نظر آتی ہے۔ تو یہ شخصیت اتنی عام کیوں ہے؟ چلیے واپس جاتے ہیں ابتدائے آفرینش کے وقت میں۔ ہم اس دور میں داخل ہونے والے ہیں جب عزازیل ابھی شیطان نہیں بنا تھا، جب وہ فرشتوں کے درمیان تھا اور انہیں علم بھی سکھایا کرتا تھا۔ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنایا، اس سے پہلے دھرتی پر ایک قوم تھی جسے جان کہا جاتا تھا۔ جان کے بعد اللہ نے جن بنائے، کیونکہ ابلیس بھی جن میں سے ایک تھا۔ ہم جان قوم کے بارے میں اس آیت سے جانتے ہیں۔ ہم نے انسان کو سوکھی مٹی سے بنایا جو کالی کیر سے بنی تھی، اور اس سے پہلے ہم نے جان کو بے دھوئیں والی آگ سے بنایا۔ مسیحی اور یہودی منبعوں میں کہا جاتا ہے کہ شیطان ایک گرا ہوا فرشتہ ہے، مگر اسلام میں یہ بات سچ نہیں۔ شیطان کوئی فرشتہ نہیں، کیونکہ قرآن صاف صاف کہتا ہے کہ ابلیس جن میں سے تھا۔ اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا، وہ جنات میں سے تھا تو اپنے پروردگار کے حکم سے باہر ہو گیا۔ ابلیس کا مطلب ہے نا امید۔ یہ نام اسے بعد میں دیا گیا۔ اس کا پہلا نام عزازیل تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کا چہرہ خوبصورت تھا اور وہ فرشتوں کی طرح چمکتا تھا۔ جان قوم شروع میں آسمانوں میں رہتی تھی۔ یہاں آسمان سے مراد کوئی اور سیارہ، کوئی اور گیلیکسی یا وہ دنیا ہو سکتی ہے جو ہم سمجھ نہیں سکتے۔ بعد میں اس قوم نے دھرتی پر رہنے کی دعا کی۔ انہوں نے اللہ کے احکام ماننے کا وعدہ کیا اور ہزاروں سال تک دھرتی پر انسانوں اور جنوں کی طرح رہے۔ ان کا مقصد عبادت اور اپنے خالق کو جاننا تھا۔ ہر روح کو آزاد ارادہ دیا گیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ جان قوم کے 70,000 قبیلے تھے۔ لمبی مدت تک انہوں نے اللہ کی عبادت کی، لیکن وقت کے ساتھ وہ بھٹک گئے، ظلم کرنے لگے اور بغاوت کرنے لگے۔ تب اللہ نے ان کے پاس پیغمبر بھی بھیجے۔ پہلے پیغمبر عامر ابن عمر تھے، انہوں نے انہیں قتل کرا دیا۔ بعد کے پیغمبروں کو بھی انہوں نے قتل کر دیا۔ پھر اللہ نے ابلیس کی قیادت میں فرشتوں کا ایک لشکر بھیجا جو جان قوم کے خلاف لڑے۔ اس لشکر نے فسادیوں کو ہرا دیا اور انہیں دھرتی سے نکال دیا۔ قرآن کہتا ہے، اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، کیا تمہارے پاس تمہیں میں سے پیغمبر نہیں آتے رہے جو میری آیتیں تم کو پڑھ پڑھ کر سناتے؟
इसके बाद धरती जिनों को दी गई। अल्लाह ने फरिश्तों का एक गिरोह बनाया और अजाजिल को उनका और जिनों का हाकिम बनाया। उस वक्त अजाजिल इबादत में निहायत दिल से लगा हुआ था। वो सब जिनों से ज्यादा इबादत करता था। उसकी खुलूस वाली इबादत नजरअंदाज नहीं। अल्लाह के हुक्म से अजाजिल आसमानों में बुलंद किया गया। कहा जाता है कि वो हर आसमान में 300 साल रहा। अजाजिल ने वहां भी अपनी इबादत जारी रखी। उसकी गहरी खुलूस और शिद्दत की वजह से अजाजिल का रुतबा जन्नत तक जा पहुंचा। कहा जाता है कि वो जन्नत में भी 300 साल रहा। तो शैतान कभी अल्लाह के मुकर्रिब बंदा था। शैतान ने जो रुतबा हासिल किया वो अल्लाह के नजदीक एक बहुत बुलंद और इज्जत वाला मकाम था। इसके बाद अजाजिल धरती और आसमान दोनों जगह मौजूद था। सब फरिश्ते उसकी तारीफ करते थे। वो उसके गहरे इल्म से फायदा उठाते और उसके दर्स में शामिल होते। एक बार कुछ फरिश्तों ने लौहे महफूज देखा। उन्होंने वहां लिखा देखा कि अल्लाह का कोई बहुत करीबी बंदा उसके गजब का शिकार होगा और उसकी हाजिरी से निकाल दिया जाएगा। वो फौरन अजाजिल के पास गए। जब अजाजिल ने देखा कि फरिश्ते उदास हैं, उसने वजह पूछी। उन्होंने लोहे महफूज में देखी लिखावट बताई और उससे दुआ करने को कहा ताकि ये मुसीबत उन पर ना आए। अजाजिल ने जवाब दिया, ये मुसीबत ना हमारे लिए है और ना तुम्हारे लिए। मैं ये लिखावट सालों से देखता आया हूं और किसी को नहीं बताया। फरिश्तों ने जिद की कि वो दुआ करे। तब अजाजिल ने हाथ उठाया और कहा, या रब, इन्हें इस मुसीबत से बचा। लेकिन तकब्बुर की वजह से उसने ये नहीं सोचा कि ये मुसीबत उसके लिए भी हो सकती है। उसका दिल बिल्कुल नहीं डरा। एक और रिवायत में बताया गया है कि इब्लीस ने लौहे महफूज देखा। उसने वहां लिखा देखा और पूछा, या रब, ये शैतान कौन है? अल्लाह ने फरमाया, वो मेरा एक बंदा है। मैं उससे बहुत सी नियामतें देता हूं मगर वो मेरे हुक्म की नाफरमानी करता है, तो मैं उसे जलील करता हूं, रुसवा करता हूं और निकाल देता हूं। इब्लीस ने कहा, या रब, उसे मुझे दिखाओ, मैं उसे तबाह कर दूं। अल्लाह ने फरमाया, तुम उसे जल्द देखोगे। अजाजिल के बुलंद रुतबे की वजह से उसे ये खास इख्तियार था कि वो आसमान और धरती दोनों जगह मौजूद हो सकता था। इस खास मकाम ने उसमें तकब्बुर पैदा करना शुरू कर दिया। वो सोचने लगा, मैं जब चाहूं आसमान या धरती पर हो सकता हूं। जिन और फरिश्ते दोनों मेरे हुक्म के नीचे हैं। इस वक्त अजाजिल शैतान बनने लगा था, क्योंकि अल्लाह दिल के राज जानता है। उसने फरिश्तों को अजाजिल के छुपे हुए ख्यालात दिखाने चाहे। इससे हमें एक अहम सबक मिलता है कि इंसान को अपनी इबादत या बुलंद मकाम पर भरोसा नहीं करना चाहिए और कभी तकब्बुर में नहीं पड़ना चाहिए। अल्लाह ने फरिश्तों से कहा, मैं धरती पर एक खलीफा बनाने वाला हूं। उन्होंने कहा, क्या तू इसमें ऐसा शख्स बसाएगा जो फसाद करेंगे और खून बहाएंगे, जबकि हम तेरी हम्द और तकदीस करते हैं। अल्लाह ने फरमाया कि मैं वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते। जब अजाजिल ने सुना कि धरती पर एक नई मखलूक बनेगी, उसे फिक्र होने लगी। फरिश्तों ने सोचा, अगर एक नया खलीफा बनेगा तो इसका मतलब है कि धरती हमसे छीन कर इस नए मखलूक को दे दी जाएगी। पहले अजाजिल ने सोचा, ये नई मखलूक नूर से भरी होगी जैसे फरिश्ते, और ये मेरे हुक्म के नीचे होंगे। मगर ऐसा नहीं हुआ। जब उसे यकीन हुआ कि अल्लाह एक नई मखलूक जरूर बनाएगा, अजाजिल ने सोचा कि जैसे उसने जान कौम और फसादियों को धरती से निकाल दिया था, वो इस नई मखलूक को भी अपने लश्कर के साथ निकाल देगा। कुरान कहता है, और वो वक्त काबिल जिक्र है जब तुम्हारे परवरदिगार ने फरिश्तों से फरमाया था कि मैं खनखनाते सड़े हुए गारे से बशर बनाने वाला हूं। जब शैतान ने यह सुना, उसने सोचना शुरू किया, अगर ये नई मखलूक मिट्टी से बनी है तो धरती अब भी मेरी है, क्योंकि मैं आग से बना हूं और इंसान मिट्टी से बना है।
आग मिट्टी से बुलंद है, आग सबसे मजबूत है, जबकि मिट्टी सबसे कमजोर। इब्लीस ने ऐसे सोचा। उसकी नजर में बुलंद रुतबा वाला ज्यादा हकदार था, लेकिन ये उसके तकब्बुर और गलत सोच का नतीजा था। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से बनाया। उसकी शक्ल ऐसी थी जो पहले कभी नहीं देखी गई। फरिश्ते और अज़ाज़ील उसे देखने आए। उसकी लंबाई धरती से आसमान तक थी। इब्लीस आदम के जिस्म के गिर्द चला, जिसमें अभी रूह नहीं डाली गई थी। उसने आदम को गहरी तवज्जो से देखा। फिर वो आदम के मुंह से दाखिल हुआ और उसके जिस्म के अंदर घूमा। उसने देखा कि ये नई मखलूक बहुत कमजोर है, मगर फिर भी वो ये कबूल नहीं कर सका कि ऐसा कमजोर और बेबस मखलूक धरती पर रहेगा। अल्लाह को शैतान के दिल के तकब्बुर और छुपे हुए इरादों का इल्म था। अब वक्त आ गया था कि आदम में रूह डाली जाए। उसी ने मौत और जिंदगी को पैदा किया ताकि तुम्हारी आजमाइश करे कि तुम में कौन अच्छे काम करता है। इस वाकया के बाद आदम अलैहिस्सलाम में रूह डाली गई। रूह उनके मुंह से दाखिल हुई और उनके पूरे जिस्म तक पहुंची। जहां जहां रूह पहुंची वहां जिस्म में गोश्त और हड्डियां भर गई। फिर अल्लाह ने उसे तरतीब दी और अपनी रूह से उसमें फूंक दी। और तुम्हारे कान और आंखें और दिल बनाए, मगर तुम बहुत कम शुक्र करते हो। अल्लाह ने आदम को मिट्टी से बनाया और कहा, हो जा, और वो हो गया। हम रूह की हकीकत नहीं जानते, क्योंकि कुरान कहता है, तुमसे रूह के बारे में सवाल करते हैं, कह दो कि वो मेरे परवरदिगार का एक हुक्म है और तुम लोगों को बहुत ही कम इल्म दिया गया है। एक हदीस में बताया गया कि रूह आदम के सर में दाखिल हुई। जब वो आंखों, चेहरे, नाक और मुंह तक पहुंची, आदम ने चीख दिया। जिब्राइल अलैहिस्सलाम उसके पास खड़े थे और बोले, ए आदम, कहो अल्हम्दुलिल्लाह। आदम ने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर अल्लाह ने फरमाया, ऐ मेरे बंदे, मेरी रहमत तुझ पर हो। जब रूह उसकी आंखों तक पहुंची, आदम ने आंखें खोली और जन्नत के फल देखे। जब उसने मुख्तलिफ फल देखे, उसे भूख लगी और वो उन्हें फौरन खाना चाहते थे। तब जिब्रील ने कहा, ऐ आदम, जल्दी मत करो। जैसे कुरान कहता है, इंसान हमेशा जल्दी में होता है। अज़ाज़ील अभी भी शैतान नहीं बना था। फरिश्ते उसके अंदर के ख्यालात से बेखबर थे। फिर वक्त आया, आदम अलैहिस्सलाम इज्जत के तख्त पर बैठे। अल्लाह ने सब फरिश्तों को पुकारा, और जब हमने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम के आगे सजदा करो, तो वो सब सजदे में गिर पड़े, मगर शैतान ने इनकार किया और गुरूर में आकर काफिर बन गया। ये सजदा आदम अलैहिस्सलाम की इबादत के लिए नहीं था, क्योंकि इबादत सिर्फ अल्लाह के लिए है। ये मुसलमानों के काबे की तरफ रुख करने जैसा था। मकसद अल्लाह के हुक्म की इताअत था। क्योंकि अज़ाज़ील ने सजदा नहीं किया, वो कुफ्फार में शामिल हो गया। फिर अल्लाह ने उसे अज़ाज़ील नहीं, इब्लीस कहा और फरमाया, ए इब्लीस, क्या बात है कि तूने उसके आगे सजदा नहीं किया जो मैंने अपने हाथ से बनाया? इब्लीस ने जवाब दिया, मैं उस इंसान के आगे सजदा नहीं करूंगा जो तूने बदबूदार सूखी मिट्टी से बनाया। तब अल्लाह ने फरमाया, यहां से निकल जा, तू मलाऊन है और मेरी लानत तुझ पर है कयामत के दिन तक। इब्लीस अब हारने वालों में शामिल हो गया था और उसके लिए निजात का कोई रास्ता नहीं बचा। जब वो तबाह होने वाला था, इब्लीस ने आखिरी इल्तिजा की, मेरे रब, मुझे उस दिन तक मोहलत दे जब लोग कब्र से उठाए जाएंगे। अल्लाह ने फरमाया, तुझे एक मुकर्ररा वक्त तक मोहलत दी जाती है, कयामत के दिन तक। इब्लीस ने कहा, क्योंकि तूने मुझे गुमराह किया, मैं तेरे सीधे रास्ते पर चलने वाले बंदों को गुमराह करूंगा। मैं उनके सामने से, पीछे से, दाएं से और बाएं से आऊंगा और तू देखना कि अक्सर लोग नाशुक्रे होंगे। अल्लाह ने फरमाया, यहां से जलील और मलामत करदा निकल जा। जो भी तेरा साथ देगा, मैं कसम खाता हूं कि मैं जहन्नुम को तुम सब से भर दूंगा। अल तबरी के मुताबिक इस आयत में जलील और मलामत करदा का मतलब है
کہ शैतान ने अपनी खूबसूरत शक्ल और फरिश्तों जैसा रूप खो दिया। यहाँ एक बात वाज़ेह करनी जरूरी है। कुछ लोग कहते हैं कि शैतान ने अल्लाह से बहस की या उनसे मुकाबला किया, मगर ये बहस नहीं थी। यहाँ तुम एक बंदे को देखते हो जो सवाल किया गया, अल्लाह की हाजिरी से निकाल दिया गया और जलील किया गया। बाद में आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत के फल दिए गए। फल खाने के बाद उन्हें नींद आई। जब आदम अलैहिस्सलाम सो रहे थे, अल्लाह ने हव्वा अलैहिस्सलाम को उनकी बाईं पसली से बनाया। लोगों, अपने परवरदिगार से डरो जिसने तुमको एक शख्स से पैदा किया, यानी अव्वल उससे उसका जोड़ा बनाया, फिर उन दोनों से कसरत से मर्द और औरत पैदा करके रूए जमीन पर फैला दिए। इस वक्त के बाद से आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम को जन्नत में रखा गया। उनसे कहा गया, जन्नत में जहां चाहो आजादी से खाओ, लेकिन इस दरख्त के पास मत जाना। मगर आदम अलैहिस्सलाम के इम्तिहान के हिस्से के तौर पर इब्लीस को भी वहां रहने की इजाजत दी थी। कुछ वक्त बाद इब्लीस आदम अलैहिस्सलाम के पास आया और कहा, अल्लाह ने तुम्हें इस दरख्त से सिर्फ इसलिए मना किया ताकि तुम फरिश्ते ना बनो या यहां हमेशा ना रहो। फिर उसने दोनों से कसम खाई, मैं तुम्हें सच्ची सलाह देने वालों में से हूं। शैतान ने दोनों को धोखा दिया। पहले उसने आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि फल खाओ, लेकिन आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की नाफरमानी नहीं की। उसने अल्लाह से वादा किया था और दरख्त से नहीं खाया। फिर शैतान हव्वा अलैहिस्सलाम के पास गया और उनके कान में बातें डाली। हव्वा ने एक फल खा लिया। जब उसे कुछ नहीं हुआ, वो आदम के पास गई और बोली, मैंने खाया और मुझे तो कुछ नहीं हुआ, आप भी खा लो। तब आदम अलैहिस्सलाम अपना वादा भूल गए थे और उन्होंने भी दरख्त से खा लिया। जैसे ही फल उनके गले से उतरा, उनके कपड़े टुकड़ा टुकड़ा होकर गिरने लगे। उनकी शर्मगाह खुल गई और उन्होंने शर्मिंदगी महसूस की। उन्होंने बयान के पत्तों से अपने आप को ढांकने की कोशिश की। इसके बाद अल्लाह ने उन सब को इब्लीस समेत सजा के तौर पर धरती पर भेज दिया और फरमाया, नीचे उतर जाओ, तुम में से कुछ एक दूसरे के दुश्मन होंगे। धरती पर तुम्हारे लिए रहने की जगह और एक वक्त तक गुजारा होगा। ये है जान कौम की तबाही, आदम की तख्लीक और अज़ाज़ील के शैतान और इब्लीस बनने की कहानी। हाँ, आखिर में शैतान का हाल बहुत अफसोसनाक है। वो एक बुलंद और खास मकाम से सबसे नीचे गिर गया और इब्लीस बन गया। इस वक्त से वो आदम का दोस्त नहीं रहा, क्योंकि उसे मालूम था कि उसे कभी माफ नहीं किया जाएगा। उसने इंसानों से गहरी नफरत रखी और कसम खाई कि वो उन्हें गुमराह करेगा। इस मकसद के लिए उसने हर तरह के धोखे और जाल को जायज समझा। नतीजे में गिरकर इब्लीस बनने के बाद उसने बहुत से जाल बिछाए ताकि दूसरों को अपनी तरफ खींचे, इंसानों को धोखा दे और उन्हें हक से दूर करे।